Good afternoon, everyone. Hello, good afternoon, everyone. Okay, गुड आफ्टरनून. कल हमने टर्मिनोलॉजी सीखे थे हैवी ब्लीडिंग के. और मैंने वो फिजियोलॉजी ऑफ मेंस्ट्रुएशन भेजा था. टाइम मिला हो तो देख लेना, या आपने देख लिया होगा तो वो उसके लिए कि आपको हार्मोनल चेंजेस जो बॉडी में होते हैं वो पता चले कि कैसे चेंजेस होते हैं, और उसके जो एचपीओ एक्सिस में जहाँ पे इम्बैलेंस होता है तो दैट लीड्स टू द एबनॉर्मल ब्लीडिंग. सो कल हमने टर्मिनोलॉजी सीखी थी. मेनोरेजिया, पोलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया एंड मैनोमेट्रोरेजिया. Everyone cleared regarding all these terminologies? Amongst that commonest causes are fibroid uterus, adenomyosis, pelvic endometritis, IUCD, intrauterine contraceptive device, chronic tube ovarian mass and the ovarian tumor. जो ब्लीडिंग होता है वो यूजुअली एडोलेसेंस, प्री पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट अबॉर्शन जो होता है वो आई ड्यू टू ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग, और जो प्री मेंस्ट्रुअली होता है, प्री मेनोपोजल होता है, दैट इज ऑब्वियसली एन ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होता है. तो व्हाट इज डिफरेंस? जो ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होगा उसमें क्या होगा? देर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ प्रोलिफरेटिव फेज. एंड जो एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है उसमें प्रॉब्लम क्या होगा? एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग में एब्सेंस ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन. एवरीबडी प्रॉपरली अंडरस्टूड? उसमें किसी को कुछ डाउट? डॉक्टर प्रेरणा, ओके, डॉक्टर प्रेरणा हैज जस्ट ज्वाइन टुडे, so let's take a quick revision, 5-7 minutes, then we will go further. Okay, welcome Dr. Prerna. So topic is heavy bleeding and postmenopausal bleeding. The terminology, Dr. Prerna, we will go just little bit fast because it's a revision. You will go through the lectures I will send you, and then you will come to with us. Okay, so initial part you will feel it's like a fast class going on, but then we will take a gradually. Whenever you have doubt anything, anyone can ask the question. Feel free to ask the question. It's always a two-way conversation, so it's a not like a classroom type के वो एक जना बोलता ही जाए. तो जहाँ पे भी आपको नहीं पता चलता है या प्रॉब्लम, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम और डाउट, प्लीज feel free to ask the question. The first terminology is menorrhagia, cyclic bleeding at a normal interval, but bleeding is either excessive in amount or the duration or both are called as menorrhagia. Causes are organic and the functional. Organic are fibroid uterus, adenomyosis, pelvic endometritis, IUCD, chronic tubo-ovarian mass and the ovarian tumor. These are the main pelvic pathology leads to the heavy bleeding. Fibroid uterus, as we know, it is the most commonest benign tumor of the uterus. Adenomyosis, we have a separate lecture on endometriosis and the adenomyosis. But what is adenomyosis? Let me clear to you. This is uterus. This is endometrial cavity. This is fallopian tube and this is ovary. Now, according to the one theory, ऐसा मानते हैं कि जो ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, वो वजाइना से बाहर निकलता है. बट ड्यू टू सर्टेन एबनॉर्मलिटी और सर्टेन जीन्स, समटाइम्स इन सम पेशेंट दिस blood take a backflow. So what happens? Due to backflow of the menstrual blood, it hampers the myometrium. This is the myometrium. 3 layers आपको सबको पता होगा. अंदर का है, फर्स्ट लेयर इज एंडोमेट्रियम.
बीच का है वो मायोमेट्रियम और बाहर का है वो पेरीमेट्रियम. सो अंदर का जो पोर्शन है ब्लू वाला पोर्शन, दिस इज मायोमेट्रियम. Okay, so whenever there is a backflow of the blood, what happens? These endometrial glands जो है, these are endometrial glands. जो endometrial tissue should be restricted to only endometrial cavity ideally, but whenever there is a certain, I told you, certain genetic problem, sometimes in some patient the menstrual flow get backflow. So this endometrial tissue may invade into the myometrium. Means development of endometrial tissue at ectopic site. Ectopic means other than normal. It may invade into myometrium. It may invade into the fallopian tube. It may invade into the ovary. It may invade into the peritoneum. So the development of endometrial glands at ectopic site is called endometriosis. So please differentiate between what is endometriosis and what is endometritis. Endometritis means infection of endometrial cavity. Infection of endometrial cavity termed as endometritis, and this is endometriosis. So जो एंडोमेट्रियल ग्लैंड से वो अदर देन यूट्राइन कैविटी डेवलप होती है, देन इट इज कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस. और यही एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स रिमेन्स इन द यूट्रस एंड इन्वेड्स इनटू मायोमेट्रियम. मायोमेट्रियम को इन्वेड करती है, देन इट इज कॉल्ड एडिनोमायोसिस. When endometrial glands invades into myometrium, it is called adenomyosis. So I think it's clear to everyone. So most common due to fibroid uterus, due to adenomyosis, due to pelvic endometritis, due to in certain case of IUCD means intrauterine copper contraceptive device, कॉपर टी की वजह से किसी को ब्लीडिंग रहता है. क्रॉनिक टीओमास, कल हमने सीखा क्रॉनिक ट्यूबो ओवेरियन मास, जो ट्यूब्स और ओवरी मिला के वहाँ पे इन्फेक्शन होके जो मास बनता है, दैट इज कॉल्ड क्रॉनिक ट्यूबो ओवेरियन मास एंड ओवेरियन ट्यूमर. देन एंडोक्राइनल, if there is a hormonal imbalance like hypothyroidism, hyperthyroidism, due to some coagulation abnormality like ITP, platelet deficiency, idiopathic thrombocytopenic purpura, where platelet count जन्म से ही from the birth it remains below 1.5 lakh. So blood है वो clotting होने में problem होता है, तो bleeding continue for long time. Disturbance in HPO exists, that I told you, if there is a disturbance from the hormone level, it affects the HPO axis, and HPO axis affect HPO is hypothalamo pituitary ovarian axis. When it affects, when there is an imbalance in the hormone of FSH, LH, TSH and prolactin, it leads to the abnormality in the menstruation as well as abnormality in the कंसेप्शन. पेशेंट को कंसीव भी नहीं होता है और इट लीड्स टू एबनॉर्मलिटी इन द मेंस्ट्रुएशन. एंड द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज आर DUB, fibroid, adenomyosis and PID is pelvic inflammatory disease. Polymenorrhea, cycle is normal but less than 21 days, it is termed as polymenorrhea. Same causes DUB, PID and TIOMAS. Metrorrhagia, irregular acyclical bleeding from the uterus, mainly seen in a DUB, in adolescents following childbirth, abortion and premenopausal. In a submucous fibroid, fibroid का भी एक अलग से लेक्चर है, तो in that we will learn types of the fibroid, how it affects, how it causes the bleeding. Polyp, cervical cancer and the endometrial cancer.
contact bleeding, CA cervix and mucosal polyp of the cervix. Sometimes in between the cycle bleeding is there called intermenstrual bleeding. It may be due to urethral caruncle, IUCD users and breakthrough bleeding in OC-pill users. What is OC-pill? It's an oral contraceptive pill which contains estrogen and progesterone. Every oral contraceptive pill having the ethinyl estradiol and different forms of progesterone. सपोज आप ओवरऑल एल लेते हो तो उसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल एंड नॉर्जेस्ट्रॉल है या लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल है. आप नोवेलोन लेते हो तो उसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल एंड डिजोजेस्ट्रॉल है. सो अल्टीमेट इज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन. बट जो प्रोजेस्ट्रॉन होता है वो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं. किसी में मोर एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, किसी में लेस एंड्रोजेनिक एक्टिविटी होती है, किसी में वो पीसीओडी में देते हैं. वो मैं एक बार सबको आपको बताऊंगी कि ओसी पिल्स कहाँ पे कौन सी यूज़ करनी चाहिए. वो मैं एक छोटा सा लेक्चर लूँगी. वो आप सबके लिए अच्छा रहेगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल इन द मार्केट, तो किसमें कौन सी देनी चाहिए. फिर मेनोमेट्रोरेजिया, ब्लीडिंग इज इरेगुलर एंड एक्सेसिव दैट मेंसेस कैन नॉट बी डिफाइंड. सो 4 टर्मिनोलॉजी: मेनोरेजिया, पोलीमेनोरिया, मेट्रोरेजिया एंड मेनोमेट्रोरेजिया. नाउ कम्स टू द DUB. यहाँ पे गलत लिखा है. कल भी मैंने बोला था मेरा जो कंप्यूटर पर्सन है जो ये स्लाइड बनाता है, एक्चुअली उस मेडिकल ऑफिसर को कोरोना हुआ है तो वो अभी होम आइसोलेशन में अच्छा हो गया है, बट दैट्स वाई करेक्शन हैड नॉट बीन डन. सो DUB में एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग विदाउट एनी क्लिनिकली डिटेक्टेड ऑर्गेनिक सिस्टमिक पैथोलॉजिकल कॉज. कोई भी कॉज नहीं हो और ब्लीडिंग होती है, देन इट इज टर्म्ड एज DUB, dysfunctional uterine bleeding. Mainly occurs due to emotional stress, anxiety, worries in adolescence, post delivery, post abortion and में होता है. तो it may be ovulatory and anovulatory. Ovulatory mainly occurs in adolescence, post delivery, post abortion and प्रीमेनोपोजल में. हियर देयर इज अ शॉर्टनिंग ऑफ फॉलिकुलर फेज. कल मैंने सिखाया था ओवरी के 2 फेज हो गए. बिफोर ओव्यूलेशन इज फॉलिकुलर फेज, आफ्टर ओव्यूलेशन इज ल्यूटियल फेज. यूट्रस में बिफोर ओव्यूलेशन इज प्रोलिफरेटिव फेज, आफ्टर ओव्यूलेशन इज सिक्रेटरी फेज. ठीक है. तो यहाँ पे ड्यू टू डिस्टर्बेंस एट HPO एक्सिस शॉर्टनिंग ऑफ फॉलिकुलर फेज हो जाता है. सो दैट्स वाई ब्लीडिंग अकर. एंड इन एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग, जब एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होता है लाइक प्री मेनोपोज, जब मेंसेस जाने को होता है उसके पहले के टाइम में बिटवीन द एज ऑफ 40, अराउंड द एज ऑफ 40 के टाइम पे पेशेंट बहुत देखने को मिलते हैं हमको. तो उस टाइम पे उसमें एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग होता है तो ओवरी में प्रोजेस्ट्रॉन सिक्रेट नहीं होता है, तो ईस्ट्रोजन बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है. वंस ईस्ट्रोजन मैक्सिमम हुआ तो इट विल गेट विड्रॉवल. ईस्ट्रोजन डाउन हुआ तो एंडोमेट्रियम शेड होके ब्लीडिंग होता है. तो वो एक बार ब्लीडिंग होता है तो वो लंबे समय तक चलता है. एग्जामिनेशन में अगर प्री मेनोपोज में DNC कराते हैं तो मेनली एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया देखने को हमें मिलती है. आपको बहुत को क्वेरी होती है मोस्ट ऑफ द बैचेस में कि व्हाट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. तो उसके लिए पहले आपको एंडोमेट्रियल कैविटी की जो एंडोमेट्रियल थिकनेस होती है उसके बारे में थोड़ा पता होना चाहिए. तो एंडोमेट्रियल जब भी आप देखते हो कोई भी अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट तो उसमें एंडोमेट्रियल थिकनेस देखते हो. तो बट एंडोमेट्रियल थिकनेस वेराइज एंड डिपेंड्स ऑन द डे ऑफ योर साइकिल. सपोज आप देख लो कि डे 2 मेंसेस के डे 2 या डे 3 पे आप अल्ट्रासाउंड कराते हो, मीन्स विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ द साइकिल, वेयर उसमें क्या होता है ऑल हॉर्मोन्स आर एट अ बेसल लेवल, मीन्स लो लेवल पे, नॉर्मल बहुत बेसल लेवल पे होता है, उनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है. तो उस टाइम पे एंडोमेट्रियम इज एट बिटवीन लेस देन 5 mm, मीन्स 5 mm, वो एकदम शांत होती है.
दैट इज कॉल्ड लेस देन 5 mm एंडोमेट्रियम. देन क्या होता है, ग्रेजुअली आफ्टर दैट द ड्यू टू इस्ट्रोजन, ओवरी में से इस्ट्रोजन रिलीज होगा, पिट्यूटरी में से गोनेडोट्रोफिन रिलीज होगे, तो इस तरफ से फॉलिकल बनना शुरू होगा, इस तरफ से इस्ट्रोजन सिक्रेट होगा. तो इस्ट्रोजन की वजह से एंडोमेट्रियम में प्रोलिफरेटिव फेज आएगा, मीन्स एंडोमेट्रियम ग्रो करेगी. तो आप अगर डे 7 डे 8 पे देखते हो तो एंडोमेट्रियम विल रीच टू 6 to 7 mm. धीरे धीरे फॉलिकल बढ़ेगा, धीरे धीरे एंडोमेट्रियम बनेगी. तो एट द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन, मीन्स एट द डे ऑफ डे 12 डे 13, एंडोमेट्रियम रिचेस टू बिटवीन 7 to 12 mm तक होती है. नॉर्मल अराउंड द टाइम ऑफ ओव्यूलेशन एंडोमेट्रियम विल रीच टू 7 to 12 mm. वो प्रेगनेंसी के लिए बेड बनाती है. ओव्यूलेशन एक बार हो गया तो सिक्रेटरी फेज शुरू हुआ यूट्रस में. फिर जो बेड है वो आइदर प्रेगनेंसी डिटेन करेगा, रिटेन करेगा. अगर प्रेगनेंसी रुकी तो एंडोमेट्रियम बढ़ती रहेगी टू सपोर्ट द प्रेगनेंसी. अगर प्रेगनेंसी नहीं रुकी तो भी ड्यू टू प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम थोड़ी बढ़ेगी. तो अगर आप बिफोर मेंसेस एंडोमेट्रियम देखते हो तो कई बार 15-16 mm की देखने को मिलती है. पर विड्रॉल जैसे आता है ऐसे अगेन डे 2 डे 3 पे विल कम्स टू 3-4 mm, मीन्स लेस देन 5 mm. तो ये सारे चेंजेस आपको पता होना चाहिए. जो एंडोमेट्रियम बनती है इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. सो एट द टाइम ऑफ मेंसेस it is less than 5 mm. Day 6 day 7 पे it is between 6 to 7 mm. At the time of ovulation it would be around 7 to 12 mm. Before the menses it reaches up to 14 to 15 mm. ऐसा होता है. अभी देखो व्हाट इज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. अगर पेशेंट डे 7 या डे 8 पे अल्ट्रासाउंड कराता है और डे 7 डे 8 पे उसके एंडोमेट्रियम 20 mm है, दैट इज टर्म्ड एज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. हमें पता है कि डे 7 डे 8 पे एंडोमेट्रियम इतनी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. या पोस्ट मेनोपोजल कि जिसमें मेंसेस चला गया है, जिसमें एचपीओ एक्सिस का कोई रोल ही नहीं है, जो हार्मोन सिक्रेट ही नहीं करती है, फॉलिकल भी नहीं बनते हैं, बट ओवर ईस्ट्रोजन सिक्रेट करती रहती है. तो मेनोपोज जिसमें मेंसेस चला गया हो या नियर टू मेनोपोजल है तो उसमें कोई फॉलिकुलर एक्टिविटी नहीं है तो भी उसके एंडोमेट्रियम कम होनी चाहिए, लेस देन 7-8 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए. ऐसे केसेस में कई बार एंडोमेट्रियम 20-22 को देखने को मिलती है. इट इज टर्म्ड एज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. लाइक अ पोस्ट मेनोपोजल जिसमें मेंसेस चला गया हो उसमें तो एंडोमेट्रियम 3-4 mm से कभी ज़्यादा होनी ही नहीं चाहिए. फिर भी अगर ऐसे पेशेंट में एंडोमेट्रियम मोर देन 10 mm भी आती है देन इट इज टर्म्ड एज एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया. तो हमको एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया है कि नहीं वो सीखने के लिए, जानने के लिए पहले तो उसका डे पता होना चाहिए, उसका स्टेटस पता होना चाहिए. और मोस्टली ऐसे बिनाइन केस में इट टर्म्ड एज सिस्टिक ग्लैंड्यूलर हाइपरप्लेजिया. तो व्हाट इज दैट? तो उसमें कैसा होता है ना कि मैंने बोला पहले ओव्यूलेशन, प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज, यहाँ पे दोनों मिक्स्ड फेज देखने को मिलते हैं. आप डे 5 डे 6 पे डीएनसी करके बायोप्सी भेजते हो तो डीएनसी रिपोर्ट में लिखेंगे मिक्स्ड चेंजेस ऑफ प्रोलिफरेटिव एंड सिक्रेटरी. आइडियली ऐसा नहीं होना चाहिए. ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस ऐसा पिक्चर देखने को हमें प्री मेनोपोज में देखने को मिलता है. तो ये एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट एंडोमेट्रियम का मुझे बताना था. इनफर्टिलिटी में भी आपको काम आएगा और यहाँ पे भी आप किसी की भी सोनोग्राफी देखो तो आपको पता होना चाहिए कि वेदर दिस एंडोमेट्रियम इज नॉर्मल है कि नहीं है. साथ में ऑन एग्जामिनेशन यूट्रस बल्की, कल हमने बोला था यूट्रस का साइज बड़ा हो जाता है, लाइक अप टू 8 to 10 वीक्स ऑफ द प्रेग्नेंट यूट्रस. अगर पेशेंट को बहुत ब्लीडिंग है तो पहले तो आप उसे मैनेज करोगे, पर आपको बारी बारी होता है पेशेंट को एक बार मेडिसिन देके
घर पहुंच दिया, बट दूसरी बार भी आता है तो देन यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू रूल्ड आउट पैथोलॉजी कि क्यों ये ब्लीडिंग हो रहा है। रूटीन सीबीसी, हीमोग्लोबिन तो जानना ही पड़ेगा कि कितना कम है, अलोंग विथ कोएगुलेशन प्रोफाइल कराओ, थायराइड प्रोफाइल कराओ, यूएसजी पेल्विस ऑलवेज कराओ फॉर रिप्रोडक्टिव ट्रैक को जानने के लिए। अगर पेशेंट मैरिड है तो, अनमैरिड है तो यूएसजी एब्डोमेन, यूएसजी पेल्विस से हमें पैथोलॉजी पता चलेगी कि फाइब्रोड है कि नहीं, चॉकलेट सिस्ट है, एडिनोमायोसिस है, क्या है। हिस्ट्रोस्कोपी एसओएस व्हेन यू फाइंड एनी सबम्यूकस फाइब्रोड पोलिप और ऐसे केसेस में। और डीएनसी मीन्स डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज हैज बोथ डायग्नोस्टिक एंड थेराप्यूटिक वैल्यू। डायग्नोसिस मीन्स डीएनसी बायोप्सी देके हम भेज देते हैं कि इसमें कोई कैंसर सेल है कि नहीं है। अगर पेशेंट को बोलते हैं ना कि कैंसर हो गया, ऐसे कैंसर नहीं होता है एक्चुअली में। दिस कैंसरस चेंजेस स्टार्ट बिफोर 5 to 6 years। तो अगर ऐसे केसेस में डीएनसी अर्ली स्टेज पे की जाए और ऐसा थोड़ा भी चेंजेस देखने को मिले और उसी टाइम पे हम हिस्टेरेक्टमी कर दे तो पेशेंट कैंसर होने से बच सकता है। नाउ कम्स टू द मैनेजमेंट पार्ट। एनीबडी हैज द डाउट अप टिल दिस? एवरीवन अंडरस्टूड प्रॉपरली? अगर ये पता है तो ही मैनेजमेंट आपको अच्छा आएगा। ओके, नाउ एडोलेसेंट मेनोरेज। एडोलेसेंट मीन्स टीनेज गर्ल्स में बहुत कॉमन देखने को मिलता है। हाँ हाँ हाँ, बल्कि पहले वो पता चला है अब डॉक्टर क्रिस्टिन आपको कि बल्कि का मतलब क्या। बल्कि यानी नॉर्मल जो यूट्रस है वो 6/5/4 का होता है, बट ड्यू टू एडवांस एज, ड्यू टू मल्टीपल प्रेगनेंसी, ड्यू टू बहुत सारी डिलीवरीज हुई होती है, ड्यू टू दिस एडिनोमायोसिस, इन सब की वजह से यूट्रस की साइज नॉर्मल से बड़ी हो जाती है। तो आप अल्ट्रासाउंड में देखोगे तो नॉर्मली मैंने बोला 6/5/4 यानी 60/50/40 mm की यूट्रस होती है। कई बार थोड़ा आगे पीछे होता है पर वो 100 mm की हो जाए यानी 10 सेंटीमीटर जितना हो जाए, दैट इज कॉल्ड बल्की यूट्रस। तो बल्की यूट्रस हुआ है तो वो क्यों हुआ है, पहले तो आप वो देखो कि वो फाइब्रोड की वजह से तो नहीं है ना। बल्कि फाइब्रोड अंदर होगा तो भी बल्कि होगा, एडिनोमायोसिस होगा तो भी बल्कि होगा। तो किसकी वजह से बल्कि यूट्रस है, देन ट्रीट अकॉर्डिंग दैट वे। और नॉर्मल भी हो सकता है, जिनकी बहुत डिलीवरीज हुई चुकी होती है, जो मल्टीपैरस होती है, उसमें ऐसे ही बल्कि यूट्रस देखने को मिलता है। तो इसके लिए आपको अल्ट्रासाउंड यूएसजी पेल्विस की ज़रूरत पड़ेगी कि बल्कि यूट्रस क्यों है, एज रिलेटेड है कि कोई पैथोलॉजी है। ठीक है, ओके। अभी मैनेजमेंट, फर्स्ट हम लोग एज वाइज लेते हैं। तो पहले कोई भी 16-17 ईयर्स या 15 ईयर्स की गर्ल आपके पास ब्लीडिंग पीवी की कंप्लेन के साथ आती है, तो व्हाट विल यू डू? तो पहले तो रूल्ड आउट अल्ट्रासाउंड से एटलीस्ट करना पड़ेगा कि इट इज डीयूबी। 90% केसेस आर ड्यू टू डीयूबी। डीयूबी इज डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग, where abnormal bleeding but no pathology, कोई पैथोलॉजी नहीं है फिर भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होता है। तो अगर ऐसी कोई लड़कियां आती है तो प्रिफरेबल ड्रग इज मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट मैप्रेट 10 to 20 milligram per day for 25 days। अगर इससे रिस्पॉन्स आता है तो ऐसे 2-3 साइकिल आप दे सकते हो। 2-3 साइकिल यानी अप टू 90 डेज भी आप दे सकते हो, या उसको विड्रॉल चाहिए तो आप 25 दिन दो, फिर 5 दिन नहीं दो, फिर 25 दिन दो, 5 दिन नहीं दो। और कई केस में तो हम 90 डेज तक भी कंटिन्यूअस दे सकते हैं। मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट
10 to 20 मिलीग्राम पर डे। मार्केट में देवरी टैबलेट अवेलेबल है। लेक्चर खत्म होने के बाद सारी मेडिसिन भी आएगी इसमें। टैबलेट देवरी या टैबलेट मैप्रिट 10 मिलीग्राम की एक टैबलेट आती है। 10 to 20 मिलीग्राम पर डे, 1 बीडी फॉर 25 डेज। अभी आप मान लो कि आपने 5 दिन के लिए दवाई दी या 2 या 3 दिन के लिए दवाई दी, उससे भी रिस्पॉन्स नहीं आता है और पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होता है, या पेशेंट जब आपके पास आता हो इतना हैवी ब्लीडिंग होता है, तो ओनली मेडिसिन से इतना रिस्पॉन्स कभी नहीं मिलता है। तो ऐसे केसेस में हम इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन दैट इज कॉल्ड एक्वाविरोन दे सकते हैं। इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन, ट्रेड नेम इज एक्वाविरोन। IM along with injection Trenlock. Trenlock is antifibrinolytic agent. 500 milligram IM or IV. Followed by either medroxyprogesterone या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की 6 साइकिल आप दे सकते हो। एकदम पेशेंट को ब्लीडिंग हुआ तो आप क्या करोगे? एक्वाविरोन एंड ट्रेनलॉक एज ए टेम्पररी रिलीफ दे दो, बाद में उसे या तो मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन पे रख दो या यू कैन पुट देम ऑन अ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल। तो आज से स्टार्ट करें, 21 दिन की गोली ले, खत्म होने के बाद विड्रॉल मेंसेस आने दे, अगेन तीसरे दिन से नया पैकेट शुरू करें, पूरा महीना ले, मेंसेस आए, नया पैकेट शुरू करें। ऐसे 4 से 6 साइकिल आप दे सकते हो। सेकेंडरी है तो ट्रीट अकॉर्डिंग द अंडरलाइंग कॉज। अगर उसको दूसरा कोई प्रॉब्लम है तो देन यू हैव टू ट्रीट अकॉर्डिंग टू द पैथोलॉजी। बट मोस्टली जो टीनेज गर्ल्स होती है उसमें बेसिक प्रॉब्लम इज HPO एक्सिस इम्बैलेंस, तो उसमें यही बेस्ट वर्क है। आइदर यू गिव मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन या यू गिव ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आप दे सकते हो। ज़्यादा है तो स्टेट में आपके पास OPD में आती है तो एक्वाविरोन स्टेट इंजेक्शन विथ ट्रेनेक्सेमिक आप दे सकते हो। पर प्लीज़ रिमेंबर कि जब भी आप कोई भी हार्मोनल मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हो, लाइक दिस मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, डोंट फॉरगेट टू काउंसल देम हाउ टू टेक, because as I show many good consultant, they just prescribe the medicine but they don't tell the patient how to take and how to follow the rules. तो आप जब भी ये मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब करो तो उसको बोलने का दिस इज हार्मोनल टैबलेट, इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है बट वो राउंड द क्लॉक काम करती है। तो आपको अगर मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन दिन में 2 बार लेने को बोला है तो आपको अलार्म रखना पड़ेगा। अभी मेरे सामने आप अलार्म रखो, सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे, ऐसे हर 12 घंटे पे लेना है। अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हो तो उसमें भी जब भी व्हेन यू प्रिस्क्राइब फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव रीजन, फॉर मेनोरेजिया रीजन, always tell them put an alarm and when the alarm turns take the medicine should be in your mouth। इतना नहीं बोलोगे तो डेफिनेटली पेशेंट और आप दोनों परेशान होगी, बिकॉज पेशेंट को ऐसा नहीं होता है, वो कई बार सुबह 10 बजे लेगा, रात को 10 बजे लेगा, बीच में 2 बजे लेगा, जब भी याद आए तब टैबलेट लेगा। उससे हार्मोनल लेवल फ्लक्चुएशंस होता है, पेशेंट को ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता है और आपके पास बारी बारी आता रहेगा और दे विल नॉट सेटिस्फाइड बाय योर ट्रीटमेंट। आपने बहुत अच्छी ट्रीटमेंट दी है कितनी भी, बट इफ़ यू नॉट काउंसिल देम प्रॉपरली देन इट विल ruin योर प्रैक्टिस। सो जब भी आप लिखो तो प्रॉपरली एक्सप्लेन के कैसे ये टैबलेट लेनी है आपको। जूम ये मीटिंग है ना, थोड़ी मिनट में क्लोज हो जाएंगी, पर आज मुझे पूरा मैनेजमेंट पता ना है, तो अगर इंटरप्ट हो जाती है, क्लोज हो जाती है, तो अगेन से ज्वाइन कर लेना। नाउ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप,
अगर यही पेशेंट, ऐसे ही पेशेंट 20 से 40 साल के बीच में आते हैं, देन ट्रीटमेंट वुड बी डिफर. सो पहले तो सब में प्रोजेस्ट्रॉन इज द कॉमन ड्रग टू कंट्रोल द ब्लीडिंग. तो 2 टाइप की प्रोजेस्ट्रॉन पहले हमने सीखा, वो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट एंड दूसरा नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट. दोनों प्रोजेस्ट्रॉन ही है, बट डिफरेंस आई एम गोइंग टू टेल यू. जो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट है वो 10 मिलीग्राम में अवेलेबल है और उसका जो एक्शन है वो माइल्ड होता है. तो वो यूजुअली मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एडोलेसेंट गर्ल्स एंड मेनोपोजल पेशेंट में यूज होता है. यहाँ पे भी यूज होगा व्हेन द पेशेंट वांट्स टू कंसीव, बिकॉज इट इज सेफ प्रोजेस्टेरोन माना जाता है. तो अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी रखनी है तो मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन सेफ माना जाता है. बट कई बार मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन की इफेक्ट इतनी नहीं आती है, इट इज लेस पोटेंट ड्रग. तो जब हमें डाउट हो कि इससे रिजल्ट नहीं आएगा, रिजल्ट कम, कई बार पेशेंट को शुरू करने के बाद भी ब्लीडिंग का प्रॉब्लम रहता है या स्पॉटिंग होता है, तो उसमें हमें थोड़ा हायर वर्जन देना पड़ेगा. तो उससे थोड़ा हायर वर्जन है नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट. बट नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट की वजह से कई बार प्रेगनेंसी में खोड़खापन यानी एनोमलीज आने के चांसेस रहते हैं. कई बार हम यूज करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, बट बुक्स में ऐसा लिखा है कि मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन बहुत सेफ है और नॉरहेथिस्टेरोन की वजह से कई बार वेरी रेयरली कंजेनिटल एनोमली हो सकती है. तो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में आप जब मेडिसिन लिखते हो तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होता है, बिकॉज दे आर प्लानिंग टू कंसीव. सो ऐसी मेडिसिन लिखने की कि उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो. तो दैट इज द बिग डिफरेंस बिटवीन मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एंड नॉरहेथिस्टेरोन. एक्शन दोनों की सेम है, बट एफिकेसी वाइज नॉरहेथिस्टेरोन एसीटेट इज मोर पोटेंट देन द मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट. अभी अगर ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है, मीन्स ओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है पेशेंट को और मेनोरेजिया है. ओव्यूलेटरी मीन्स उसकी साइकिल रेगुलर है पर ब्लीडिंग ज्यादा आता है हर महीने पे. तो ऐसे केसेस में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आर द प्रिफर्ड ड्रग. ठीक है. तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स में आप कौन सी दोगे? तो मैंने बोला उसमें ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन ही आता है, पर उसकी एक्शन अलग अलग होती है और उसका डोज अलग अलग होता है. आई प्रीफर इन माई प्रैक्टिस, आई एम ओनली रिलायबल ऑन ओवरऑल एल एंड द नोवेलॉन. बहुत सारी मेडिसिन आती है बट उसकी एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं होती है. तो जब ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की बात आती है तो मैं इन दोनों पे ही भरोसा करती हूँ, ओवरऑल एल एंड द नोवेलॉन. उसमें क्या है? इथिनाइल एस्ट्राडियोल 0.03 मिलीग्राम या 30 माइक्रोग्राम, याद रखो 30 माइक्रोग्राम है, 330 है. और लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल इज अ प्रोजेस्टेरोन टाइप है. तो दिस इज, उसमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होती है, उसमें 3 टाइप्स होती है, वेरी लो डोज एंड हाई डोज. तो ये जो कैटेगरी है वो लो डोज में आती है. व्हाट इज वेरी लो डोज? जिसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल 20 माइक्रोग्राम होता है, इट इज कॉल्ड एज वेरी लो डोज. तो उसमें फेमिलॉन टैबलेट आती है जिसमें इथिनाइल एस्ट्राडियोल, वो फॉर कॉन्ट्रासेप्शन और जिसका वेट बहुत कम है उसमें हम वेरी लो डोज यूज करते हैं.
बट जब ब्लीडिंग कंट्रोल करना है, साइकिल रेगुलेटर है, तो लो डोज इज प्रीफर्ड ड्रग. हाई डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो गवर्नमेंट में मिलती है, माला डी, माला एन, और प्राइवेट में लिखनी है तो ओवरऑल एल की जगह ओवरऑल जी कर दो, तो वहां पे इथिनल इस्ट्राडियोल 50 माइक्रोग्राम आएगा. सो इट इज हाई डोज. वेरी लो, लो एट द हाई डोज. वेरी लो मैं प्रिफर नहीं करती हूँ बिकॉज कई बार उससे ब्लीडिंग होता है, तो लो या हाई डोज देना पड़ता है. हाई लो में ओवरऑल एल एंड द नोवेलॉन. कई बार बहुत ओबेस पेशेंट होता है तो इससे रिस्पॉन्स नहीं आता है, तब वी विल मूव टू द ओवरऑल जी. बट जैसे जैसे आप इथेनॉल एस्ट्राडियोल का डोज बढ़ाते हो तो उसकी साइड इफेक्ट्स नोजिया, वॉमिटिंग भी बढ़ती है साथ में. तो मेरे प्रैक्टिस में जब भी मैं ओवरऑल एल या कुछ भी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल प्रिफर लिखती हूँ तो पहले 10 दिन उसे साथ में वॉमिकाइंड MD4 ऑन्डेनसेट्रोन लिख देती हूँ सुबह उठ के पहले ये ले लेने की. उसके बॉडी में 8-10 दिनों में उसको आ जाएगा, फिर उसको ये नोशिया एवरी टाइम नहीं होगा. बट एकदम से आप दोगे तो पेशेंट को वॉमिटिंग होगी और वो टैबलेट बंद कर देगा. तो यहाँ पे भी काउंसलिंग का रोल आएगा. अलार्म रख के लेने की, मुझे पूछे बिना बंद नहीं करने की. ये कोई गर्म गोली नहीं है, इससे थोड़ा नोशिया वॉमिटिंग जैसा होगा, चक्कर आएगा, बट 8-10 दिनों में वो अच्छा हो जाएगा. तो हम दो मेडिसिन हम लोग आइदर वी प्रिस्क्राइब द प्रोजेस्ट्रॉन, आइदर वी प्रिस्क्राइब द ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल फॉर 3 साइकिल्स. यूजुअली 3 साइकिल्स यानी डे 5 से स्टार्ट करो, 21 दिन लो, पैकेट खत्म होगा, विड्रॉल आएगा, अगेन डे 5 से नया पैकेट, ऐसे 3 साइकिल्स फॉर साइकिल रेगुलेटर. इफ एनओव्यूलेटरी ब्लीडिंग है, एनओव्यूलेटरी मैंने बोला कि लाइक अ प्री मेनोपोज में, तो लो डोज ऑफ मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन या नॉरहेस्टेरॉन फ्रॉम डे 5 टू डे 26 आप दे सकते हो. बट वेन द पेशेंट वांट्स द प्रेगनेंसी, पेशेंट को प्रेगनेंसी भी रखनी है और ब्लीडिंग भी कम करना है, तो आइदर यू कैन गिव डाइड्रोजेस्ट्रॉन, दैट इज द डिफर्स्ट्रॉन टैबलेट, और मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन. डाइड्रोजेस्ट्रॉन है वो बहुत सेफ है बट इट्स अ वेरी कॉस्टली ड्रग, तो उसको हम इनफर्टिलिटी के लिए रिजर्व रखते हैं, और वो ऑलवेज टू बी गिवन आफ्टर ओव्यूलेशन. सो मोस्टली डे 17 से आप स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओव्यूलेशन अकर आर बिफोर डे 17. हाँ, हम कहाँ थे? हाँ, डाइड्रोजेस्ट्रॉन है डिफर्स्टोन, तो वो अच्छा है बट इट इज़ कॉस्टली. सो अगर पेशेंट अफोर्डेबल है तो यू कैन गिव द डाइड्रोजेस्ट्रॉन फ्रॉम डे 17 टू डे 28 और मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम डे 17 टू डे 28. कई बार पेशेंट पोस्ट डिलीवरी, पोस्ट अबॉर्शन होता है,
और ब्लीडिंग कंटिन्यू होता है, तो ऐसे केसेस में हम डेपोप्रोवेरा, दैट इज द कंटिन्यूअस प्रोजेस्ट्रॉन, और उसकी इफेक्ट 2.5 से 3 महीने तक रहती है. इट इज़ द सेम इंजेक्शन दैट कैन यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन. इट इज़ नथिंग, इट इज़ कंटिन्यूअस प्रोजेस्ट्रॉन रिलीज्ड इन अ स्लो फॉर्म ओवर 90 डेज. तो एक इंजेक्शन 90 डेज पे रिपीट करने का, बट आइडियली 15 डेज पहले रिपीट, सो 2.5 महीने पे रिपीट कर देने का. DMPA इंजेक्शन डेपोप्रोवेरा, साइड इफेक्ट एक ही है, इससे वेट गेन होता है और स्पॉटिंग ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होता रहता है, बिकॉज प्रोजेस्ट्रॉन फ्लक्चुएट होता रहता है बॉडी में. तो जब भी आप पेशेंट को मेडिसिन नहीं लेनी है, सिंपल एक ही इंजेक्शन लेना है, तो इट इज़ बेस्ट ट्रीटमेंट. बट साथ में बोलो कि ऐसा प्रॉब्लम होगा. ब्रेस्ट फीडिंग जो करते हैं उसमें ओवरऑल एल जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है वो दे सकते हैं, बट ऐसा बोलते हैं कि फर्स्ट 6 मंथ्स में अगर हम देते हैं तो फीडिंग कम हो जाता है. तो ऐसा नहीं चाहिए. तो प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल जिसमें इस्ट्रोजन नहीं हो ऐसी पिल आती है. एक ही पिल इंडिया में मिलती है, दैट इज सिराजेट. सिराजेट डेली फॉर 3 मंथ्स. फिर पेशेंट, ऐसे कई सारे पेशेंट देखने को मिलेंगे कि उन्हें मेडिसिन ही नहीं लेनी है, खानी ही नहीं है, पर DUB अच्छा करना है. तो उनके लिए न्यू इन्वेंशन इज लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल इंट्रायूट्राइन सिस्टम, LNG-IUS. व्हाट इज दैट? तो एक कॉपरटी जैसे डिवाइस आता है, उसी में प्रोजेस्ट्रॉन वहाँ से सिक्रेट होता रहता है. तो एक तो एक कॉन्ट्रासेप्शन लाता है और एक ब्लीडिंग कंट्रोल करता है, और इट वर्क्स फॉर 5 years, 5 साल तक वो वर्क करता है. इसमें से थोड़ा थोड़ा लिवोनॉर्जेस्ट्रॉल डेली रिलीज होता रहेगा. प्रोडक्ट का नाम है मीरेना, वेरी पॉपुलर ब्रांड, और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं. उसका प्रॉब्लम एक ही है कि उसकी इफ़ेक्ट है वो आने में 5-6 महीना लगता है. अगर आप आज रखते हो तो इफ़ेक्ट आना 5-6 महीने बाद होगा, तो उस टाइम पे आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी. बट वंस 5-6 मंथ्स के बाद अगर इफ़ेक्ट आ गई तो 5 साल तक रहेगी. इनिशियली इट रिड्यूस द मेंसेस एंड समटाइम्स इट कैन completely लीड्स टू एमेनोरिया. सो इट इज़ हाईली रिकमेंडेड इन केस ऑफ DUB. और जिसको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और DUB है, तो दिस इज द प्रिफर्ड ड्रग और डिवाइस फॉर मेनोरेजिया. नॉन हार्मोनल में हम एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एजेंट ट्रेनेक्सामिड एसिड सब में देते हैं. ब्लीडिंग है, ट्रेनेक्सा एसिड टैबलेट है कि कभी भी कोई किसी को भी ब्लीडिंग में दे सकते हो. उससे क्या होगा, ब्लीडिंग का जो फ्लो है वो थोड़ा कम हो जाएगा. और आप कुछ भी देते हो, आप उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल देते हो, आप मेड्रोक्सी देते हो, आप नॉरहेथिस्टेरोन देते हो, तो उसकी इफ़ेक्ट आने तक दिस ट्रेनेक्सा विल वर्क 1 TDS फॉर 5 days. इवन IUCD में कॉपर टी की वजह से ब्लीडिंग होता है, तो ऐसे पेशेंट में कई बार इनिशियल में ब्लीडिंग होता है, तो ऑलवेज गिव ट्रेनेक्सा 500 mg 1 TDS फॉर फर्स्ट 3 to 4 days. जब भी मेंसेस आए पहले 3-4 दिन ले लेने का. ऐसे 3-4 महीना लोगे तो फिर 4-5 मंथ तक अच्छा हो जाएगा. साथ में पेन है तो मेफेनेमिक एसिड. सो ट्रेनेक्सेमिक विथ मेफेनेमिक कॉम्बिनेशन आर अवेलेबल. रिड्यूस द पेन, रिड्यूस द ब्लड लॉस. सर्जिकल में DNC, एंडोमेट्रियल एब्लेशन एंड हिस्टेरेक्टोमी. अगर नहीं लेना है देन यू कैन स्विच ओवर टू दिस सर्जिकल पार्ट. तो यहाँ तक का क्लियर. नाउ वी विल टेक फॉर प्री मेनोपॉज. डाउट है किसी को? ये ट्रीटमेंट में नहीं समझ में आया है, क्या करना है? किसी को कुछ क्वेश्चन ही नहीं होता है? सबको अच्छा है? सुन तो रहे हो कि सो गए हो सब? हेलो. हेलो.
यस हाँ, मैम। मैम। यस मैम। ओके, है क्वेश्चन है कुछ? हेलो हाँ बोलिए। मैम, ओसीपी का बता दीजिए कब से स्टार्ट करना होता है। हाँ देखिए, जो ओसी पिल्स होती है ना, वो आप तो पहले तो आप उसको वो देखो कि आप किस कौन सी ट्रीटमेंट के लिए आप दे रहे हो। अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए देते हो तो डे 2 से ही स्टार्ट करा दो। अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज़ करना चाहते हो तो डे 2 से स्टार्ट कराओ। पर अगर आप रेगुलेटर साइकिल रेगुलेशन के लिए यूज़ करना चाहते हो, मेनोरिजिया के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो देन डे 5 से डे 26 विल बी ओके। आया समझ में? कॉन्ट्रासेप्शन है तो अर्ली स्टार्ट करा जी दीजिए, मैम। बट साइकिल रेगुलेटर है तो आप डे 5 डे 6 से स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर? डॉक्टर क्रिस्टीना, कुछ पूछना है आपको? नो मैम। ओके ओके। डॉक्टर प्रेरणा, समझ में आ रहा है सब? यस मैम। ओके। नाउ प्री मेनोपोज। प्री मेनोपोज में हम क्या करेंगे? इफ ऑल कॉज इज रूल्ड आउट, प्री मेनोपोज में पहले तो आपको पैथोलॉजी तो रूल्ड आउट करनी ही पड़ेगी यूएसजी पेल्विस करा के, पर कुछ नहीं है और ब्लीडिंग है, देन इट इज डीओबी। तो इसमें भी सेम नॉरेथिस्टेरॉन या मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरॉन फ्रॉम डे 5 टू डे 25 ऐसे दे सकते हो। ट्रेनेक्सेमी फॉर फर्स्ट 5 डेज। एक नई ड्रग आई है ऑर्मिलोक्सिफेन, उसको सेविस्ता बोलते हैं। दैट इज नॉन हार्मोनल ट्रीटमेंट है, ऑर्मिलोक्सिफेन सेविस्ता। वो ऐसे उससे कई बार एमेनोरिया हो जाता है, ब्लीडिंग नहीं होगा, बट उसकी कोई इतनी साइड इफेक्ट नहीं है। सेविस्ता ट्वाइस अ वीक for 3 months followed by once a week for another 3 months. It creates like a medical menopause. तो ये हम ऐसे केसेस में देते हैं कि जो रीचिंग टू मेनोपोज है, तो उसमें 6 महीना पेशेंट लेगा तब तक उसका मेनोपोज आ जाएगा। तो नियर टू मेनोपोज के जो पेशेंट है उसमें सेविस्ता विल वर्क वंडरफुल। इट ऑल्सो एक्ट एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव पर्पज। पर रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में देते हो तो इससे प्रेगनेंसी नहीं रुकेगी, और साइकिल एमेनोरिया हो जाता है तो किसी को नहीं अच्छा लगता है। तो इट इज़ मेनली गिवन टू द जो मेनोपोज नियर बाय है। सेविस्ता ट्वाइस अ वीक फॉर 3 months फॉलोड बाय वंस अ वीक फॉर अनदर 3 months। देन मिरेना इज द गोल्ड स्टैंडर्ड। उसका इंसर्शन भी इतना, अगर आपको कॉपरेट इंसर्ट करना आता है तो आप मिरेना रख सकते हो। पोस्ट मेनोपोजल। व्हाट इज पोस्ट मेनोपोजल? पहले तो मेनोपोज पता होना चाहिए। व्हेन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंसेस फॉर 12 consecutive months विदाउट एनी अदर पैथोलॉजी। 12 महीने, 1 साल तक कोई पैथोलॉजी बॉडी में नहीं है और मेंसेस नहीं आया है, देन यू कॉल्ड मेनोपोज। उसका मार्कर क्या है? एफएसएच शुड बी मोर देन 40। मोर देन 20 है तो मेनोपोज आना स्टार्ट हुआ है, 40 इट इज कन्फर्म मेनोपोज। What is the normal value of FSH LH in the reproductive age group? Anyone knows? नॉर्मल 1.2 से 8 के बीच में होता है। उससे आगे जाता है दैट मीन्स के फॉलिकल बनना कम हो गया है, और मोर देन 20 मीन्स मेनोपोज आना शुरू हुआ, मोर देन 40 इज कन्फर्म मेनोपोज। अगर 1 साल तक पेशेंट को मेंसेस नहीं आया है और फिर उसे मेंसेस आता है, ब्लीडिंग दिखता है, तो इट इज कॉल्ड पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग, एंड इट इज मेनली ड्यू टू एनी पोलिप और सर्वाइकल कैंसर, मीन्स कोई भी एंडोमेट्रियल कैंसर, सर्वाइकल कैंसर। तो आपको पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग में ऑलवेज डू डीएनसी, डायलेटेशन, क्यूरेटेज एंड मटेरियल टू बी सेंट फॉर बायोप्सी। एंड यूएसजी पोस्ट मेनोपोजल में थिकनेस शुड बी लेस देन 5। अगर मोर देन 5 है तो भी इंडिकेशन फॉर
डीएनसी बायोप्सी, डीएनसी पक्का करना चाहिए एंड देन ट्रीट अकॉर्डिंगली। अगर पोलिप है तो पोलिपेक्टोमी कर दो, अगर कुछ नहीं है तो सिंपल मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन सुबह शाम 90 दिन के लिए दे दो, और अगर कैंसरस चेंजेस है तो गो फॉर हिस्टेरेक्टोमी। ठीक है, तो यहाँ तक रखते हैं। कल डिसमेनोरिया और फाइब्रोड हम लेंगे। ठीक है, anyone have the doubt or question want to ask? Hello. हाँ प्लीज डॉक्टर चांदनी। Yeah, other thing is, in this investigation, now this is just purely like, how we deal with patients as gynecologists. Thing is, in investigation for a postmenopausal patient, who is complaining of bleeding, and, we always advise that we'll go ahead with the DNC and everything. But the basic thing is we have to rule out, right? The carcinoma or hyperplasia. Yeah. Now, so we have a lot of options. Now, in that, the gold standard, what everybody prefers and what guidelines we follow is we do a hysteroscopic guided biopsy. Yeah, the endometrial biopsy, right? But now this is what I want to ask in your practice. Yeah, there are a lot of times we have high risk patients, the cardiac patients or something. So very oftenly, what I do otherwise for my patients and everything is we do a office endometrial biopsy, the one which we do with the pipette. So do you also do that? Like how frequently you do that? No, I am usually go for, I will not prefer hysteroscopy in each and every patient. Usually I prefer to take a DNC, because sometimes what happens in office hysteroscopy and office biopsy, all four quadrants material may not be, sometimes we may miss. So I always give the short general anesthesia very quickly, very few, within 1 minute I will complete the procedure. Hello, can you hear me? I am audible? Yes, you're audible now. Yeah. Yes. So yes, you're usually I always prefer to go for DNC, gold standard. Hysteroscopy and everything is good, but sometimes by the office hysteroscopy and by office biopsy, we may miss certain materials that to be taken from all four quadrants. So ideally जो conventional DNC है post menopausal में स्पेशली, तो जो हाई रिस्क है उसमें हिस्टेरोस्कोपी हम नहीं करेंगे, ऑलवेज ओनली गो फॉर डीएनसी. बट अगर ऐसी एडवांस लाइक यानी 40-45 ईयर की एज ग्रुप है कि जिसमें हम दूसरा भी कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ऐसे में अगर पेशेंट फिट है तो ऑब्वियसली हिस्टेरोस्कोपिक गाइडेड बायोप्सी इज प्रिफर्ड चॉइस. बट अगर बहुत एजेड पेशेंट है कि जहाँ पे मुझे डाउट है कि इट मे क्रिएट सम प्रॉब्लम एनेस्थेसिया रिलेटेड, तो ऐसे केसेस में हम यूजुअली आई गो फॉर शॉर्ट जीए अलोंग विथ डीएनसी. तो बिकॉज हाँ, मे प्रोबेबली ओनली बाय डूइंग ऑफिस हिस्टेरोस्कोपी और बाय ऑफिस डीएनसी वी मे मिस सर्टेन टिश्यू टू कलेक्ट इट. बिकॉज क्या होता है ना कि पूरा इतना डायलेट नहीं हुआ होता है सर्विक्स, तो कई बार अच्छा मटेरियल नहीं मिलता है. तो ऑलवेज आई गो फॉर कन्वेंशनल डीएनसी इन ईच एंड एवरी केस ऑफ पोस्ट मेनोपोजल ब्लीडिंग. नहीं, दैट आई टोटली एग्री. मतलब जैसे जैसे मैं आपको वो तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट हमेशा हम लोग प्रेफर करेंगे कि डीएनसी हम लोग करें एंड हमको 4 क्वाड्रेंट सैंपल्स जो 8 जोन्स भी हम लोग बोलते हैं, बट कैसे होता है करेक्ट, तो ये हम लोग ऑलवेज प्रेफर करते हैं. दिस इज द फर्स्ट चॉइस. बट बहुत से जैसे एज आई स्पेसिफाइड कि पोस्ट मेनोपॉजल में प्रोबेबली हुआ इन अ मस्ट यू कैन से ग्रुप ऑफ 55 to 70, बिकॉज़ अभी लॉन्गेविटी भी ज्यादा हो गई है, हाउ पेशेंट्स कम. बहुत सारे वो एज में आपको मैक्सिमम मतलब दिस इज व्हाट आई हैव बीन एनकाउंटरिंग स्पेशली इन माय प्रैक्टिस इन मॉरिशस एंड अब्रॉड, कि बहुत सारे कार्डियक और डायबिटिक और ऑपरेटिव रहेंगे और जिसमें आपको इट इज अ हाई रिस्क तो उसमें मतलब ये तो दिस इज नॉट अ प्रेफरेंस व्हाट आई एम आस्किंग, दिस इज ऑल व्हाट वी आल्सो डू, व्हाट यू आल्सो डू, कि डीएनसी करते हैं, हिस्टेरोस्कोपिक गोल्ड स्टैंडर्ड है, बट इन प्रैक्टिस वी प्रेफर डीएनसी. बट जैसे मैंने आपको कहा कि जो ऑफिस पिपेट हम लोग यूज करते हैं, that's totally totally करते हैं. No, I am not doing. अच्छा, you are not doing. Okay. No, my basic point was to ask in your running practice, do you encounter? No, I am not doing, because I don't think with a short GA
दैट वॉन्ट बी मच प्रॉब्लम, बिकॉज हिस्टेक्टमी हम 65-70 ईयर में भी हमें करनी पड़ती है ना, दैट वी आर डूइंग यूजुअली। हिस्टेक्टोमी भी हम करते ही है ना, क्यों नहीं करते हैं? तो इट्स ओनली टेक हाँ नहीं, पर कैसे है ना, बिकॉज ये मतलब ये कैसे है, ये काफी मेरा पर्सनल है, लाइक यू नो आई हैड ऑन द काउंट ऑफ 5 to 6, मतलब होते हैं ऐसे केसेस, यू नो या होते हैं, आई नो, या होते हैं ऐसे पेशेंट दे, सो ऐसे केसेस में या मटेरियल, या बट जैसे कि ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप होता है हम हाइपरप्लेजिया है या मैलिग्नेंसी है, ये वो हमारा तो रूल्ड आउट करना। हाँ, पोस्ट मेनोपॉजल है तो उसी के लिए तो आप डीएनसी ये सब कर रहे हो, बिकॉज देर इज समथिंग प्रॉब्लम इज देयर। ऐसा नहीं कि सब में, इट कुड बी एंडोमेट्रियल पॉलिप, इट कुड बी सर्वाइकल पॉलिप की वजह से भी हो सकता है, बट पोस्ट मेनोपॉजल ब्लीडिंग नहीं है तो we will always try to save the uterus, uterus, you know, we will never obviously go with hysterectomy. So ऐसे केसेस में पोस्ट मेनोपॉजल में तो सिंपल यू गिव द मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन फॉर 90 days और ऐसे देते हो तो मोस्टली इट विल करेक्ट। और विथ डीएनसी द प्रॉब्लम इज दैट के समटाइम्स मैनी आई हैव एनकाउंटर्ड मैनी पेशेंट्स हैव द एंडोमेट्रियल पॉलिप, सर्वाइकल पॉलिप, सो जस्ट you do the proper curettage, they will definitely treat it with this. So always I more towards I had office hysteroscopy, but usually I not prefer to do in patient, so hardly I like once in a year or ऐसा कुछ patient बहुत critical। But how was your experience, like when you did, like how was your experience that time? Because I think in India we are doing very rarely, very because frequently, yes. But we are, I am not satisfied, बिकॉज करने के बाद आई एम नॉट सेटिस्फाइड कि मैंने अच्छा काम, बिकॉज एक अंदर से हमको जो सेटिस्फेक्शन होता है, नो आई हैड डन प्रॉपर वे, सो वो सेटिस्फेक्शन मुझे तो नहीं मिलता है कि नो आई हैड डन प्रॉपर वे। क्योंकि पर्सनली भी जब यहाँ पे जो देखा था, जो यू नो द ब्रांड्स विच आर सप्लाइंग यहाँ पे बहुत लिमिटेड है, हाँ यू नो नहीं मिलता, हाँ और यहाँ के यहाँ का मैं भी एग्री करूंगी कि यहाँ पे और वहाँ पे जो वो यूज करते हैं वो बहुत, यू नो, बोलते हैं जमीन आसमान का फर्क है क्वालिटी वाइज, या नहीं, पेशेंट सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। सो दैट्स व्हाई I stopped to do that. We had purchased that, but I had stopped to do that because I am not fully satisfied to what I had did. इससे better है कि within 1 or 2 minutes में I take the biopsy from all 4 quadrants and finish the procedure. So that's I more prefer to. So you're going purely for DNC in all patients. Yeah, definitely. Okay. Clear? Anyone has the question? So we complete here. Tomorrow we will start with dysmenorrhea, इसका जो पोर्शन रह गया है थोड़ा वो, और we will move to the fibroid. ठीक है? Okay. Have a nice day. ma'am. Okay, bye-bye. Bye-bye. Have a nice day. Thank you, ma'am. See you Bye, tomorrow. ma'am. Thank you. Okay, bye. See you tomorrow 3 p.m.